Welcome to the Starwood Investments Private Limited. This is co-founder here with you to discuss the various guidelines under Members Guidelines 2020-21. Let's see those rules. The first guideline under Members Guideline is a member of Starwood Investments Private Limited has to strictly adhere to all the guidelines and rules of SWI. Breaking of any rule may lead to cancellation of the membership at any stage. Starwood Investments Private Limited के हर एक मेंबर को ये ध्यान में रखना है कि वो हर एक रूल्स एंड रेगुलेशंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करे। कोई भी रूल अगर वो लोग तोड़ते हैं तो फिर उनका मेंबरशिप कभी भी किसी भी स्टेज पे कैंसिल किया जा सकता है। The second rule says Starwood Investments Private Limited does not register minor below 18 years of age as member. Starwood Investments Private Limited माइनर्स को जो कि 18 साल के उम्र से कम है उनको एज अ मेंबर रजिस्टर नहीं करते। The third rule is after the approval of membership by founder and co-founder, a member has to deposit an amount of ₹300 to activate his membership and to generate member ID. Notably, the amount of ₹300 will directly reflect on new member's own account, so it doesn't charge any money for membership. जब भी कोई मेंबर अपना कीम फॉर्म फिलअप करे तो उसके बाद फाउंडर और को फाउंडर द्वारा इवेलुएट किया जाएगा और जब वो फॉर्म अप्रूव हो जाता है तो उस मेंबर को ₹300 दे के उसका मेंबरशिप एक्टिवेट करना होता है और उनका मेंबर आईडी जनरेट करना होता है। और हर एक मेंबर को ये ध्यान में रखना है कि जो वो ₹300 पे कर रहे हैं वो उनके डायरेक्टली उनके अकाउंट में शो करेंगे। हमारी तरफ से कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता मेंबरशिप के लिए। The fourth rule is following the approval of membership generation of member ID, a member has to choose the savings mode. Starwood Investments Private Limited will send a URL link to the member's registered mobile number to choose the savings mode. Starwood Investments Private Limited provide two modes for its savings: DDM, which is daily deposit mode, MDM, monthly deposit mode. जब आपका मेंबरशिप अप्रूव हो जाए तो और साथ ही साथ आपका जब मेंबर आईडी जनरेट हो जाए तो उसके बाद आपको चूज करना होता है कि आप कौन सा सेविंग्स मोड यूज करेंगे। तो स्टारवुड इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक URL लिंक भेजेंगे एक फॉर्म का जिसपे आपको चूज करना होता है कि DDM चूज करेंगे या फिर MDM। DDM है कि डेली डिपॉजिट मोड और MDM है मंथली डिपॉजिट मोड। अगर आप डेली के हिसाब से डिपॉजिट करना चाहते हैं तो DDM चूज करिए और अगर मंथली के हिसाब से सेविंग्स करना चाहते हैं तो MDM चूज कीजिए। The fifth rule is for DDM daily deposit mode, a member has to save a minimum amount of ₹10 within a week. Not able to do so will lead to a fine which is equal to the number of member and official multiplied by 5 and the deducted fine will be equally transferred to other members account. Nota bene, fine may increase or decrease in accordance with the number of member. अगर आप DDM चूज करते हो तो डेली डिपॉजिट मोड में क्या होता है कि आपको हफ्ते के एक हफ्ते में पूरे हफ्ते में मिनिमम ₹10 सेव करने होते हैं। अगर आप पूरे हफ्ते में ₹10 सेव नहीं करते हो या फिर वो प्रॉपर सेविंग्स मेंटेन नहीं करते हो तो आपके ऊपर एक फाइन लगाया जाएगा जो कि जितने मेंबर्स और ऑफिशियल है उनके नंबर्स और उनको 5 से मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा उस रिजल्ट का फाइन आपके ऊपर इम्पोज किया जाएगा। जैसे कि अभी हमारे मेंबर है 6, ऑफिशियल है 2, तो 8 मेंबर हो गए। अगर किसी भी मेंबर का फाइन लगता है तो उस मेंबर को छोड़ के 7 लोग हो जाते हैं। 7 into 5 that is 35। तो कोई भी मेंबर का अगर वीकली फाइन लगता है तो ₹35 का लगेगा और ये ध्यान में रखना है कि ये फाइन जैसे मेंबर बढ़ेंगे उस हिसाब से बढ़ जाएंगे। The sixth rule is for MDM, which is for MDM monthly deposit mode.
A member has to save minimum amount of ₹500 within the first 7 days of the month. Not able to do so will lead to a fine which is equal to the number of member and official multiplied by 10, and the deducted fine will be equally transferred to other members' account. And B, fine may increase or decrease in accordance with the number of member. मंथली डिपॉजिट मोड के यूजर्स के लिए ये ध्यान में रखना है कि उनको हफ्ते के पहले 7 दिन के अंदर ₹500 सेव करने हैं। स्टारवुड इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड पहले 7 दिन इसलिए चूज किया कि कोई अगर मंथली चूज करता है, कोई अगर सैलरी वाला आदमी है तो पहले 7 दिन के अंदर ही उनके सैलरी डिपॉजिट होते हैं, और ये कोई डिफॉल्ट नहीं है कि 1 तारीख को ही आएगा पैसा। तो इसीलिए उनको ये रिलैक्सेशन है कि 7 दिन के अंदर पैसे देने होंगे, और अगर 7 दिन के अंदर नहीं दे पाए पहले 7 दिन के अंदर तो उनके ऊपर एक फाइन इम्पोज किया जाएगा जो कि इक्वल टू द नंबर ऑफ मेंबर है और ऑफिशियल मल्टीप्लाइड बाय 10। मतलब जैसे कि अभी के मेंबर और ऑफिशियल मिला के होते हैं 8, उसमें से एक जिनका मंथली डिपॉजिट है तो उनका अगर फाइन लग जाता है तो बाकी 7 into 10 which is equal to ₹70 उनके ऊपर इम्पोज किया जाएगा, और जो फाइन है वो इक्वली हर एक मेंबर को ट्रांसफर किया जाएगा एक्सेप्ट जिनके ऊपर फाइन इम्पोज हुआ है। फाइन इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है जिस तरीके से मेंबर बढ़ेंगे या कम होंगे। The 7th rule is even though coins are legal tender, but for smooth banking service, Starwood Investments Private Limited does not accept coins as savings. Only paper notes are allowed for cash savings. ये सबको पता है कि कॉइन्स भी एक लीगल टेंडर है, बट बैंकिंग सर्विस अच्छा स्मूथ बनाने के लिए स्टारवुड इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड कॉइन्स एक्सेप्ट नहीं करते। हमेशा ध्यान में रखें कि जब भी आप कैश सेविंग्स कर रहे हो तो पेपर नोट्स का इस्तेमाल करें। The 8th rule is Starwood Investments Private Limited does not accept torn notes. ये बहुत अच्छी एक पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है कि सुई कभी भी फटे हुए नोट या फिर कोई भी तरीके का जिसमें एम्बिग्यूटी या फिर डिस्क्रिपेंसी टाइप्स फोल्ड्स या फिर किसी भी तरीके का उसमें वर्न आउट जैसा कुछ भी हो तो वैसा नोट्स एक्सेप्ट नहीं करते। Next is if a member deposit money with 500 and 2000 notes, the member will have to take the pictures of the note which must be clear, and the number of the notes must be seen and send it to the official email or official WhatsApp number of SUI. This is to ensure safety for fraudulent case of fake notes. ये भी बहुत एक अच्छा पॉइंट है जो कि मेंबर को ध्यान में रखना है कि जब भी वो कैश सेविंग्स कर रहे हो और उनके पास 500 या 2000 के नोट्स हैं और 500 और 2000 के नोट्स से कैश सेव कर रहे हो तो ये ध्यान में रखना है कि वो उन 500 और 2000 के नोट्स का फोटो खींच ले और जिसमें उस नोट्स के नंबर्स अच्छे से दिखे, और वो फोटो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट में ऑफिशियल ईमेल में भेजे या फिर ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पे भेजे। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर एज इन ग्रुप नहीं, हमारा जो स्टारवुड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है उसमें भेजें। और ये इसीलिए किया जाता है कि कोई भी फ्रॉडलेंट केस ना हो या फिर कोई भी तरीके का फेक नोट्स हमारे स्टारवुड इन्वेस्टमेंट्स द्वारा एक्सेप्ट ना किया जाए। The next rule is if any member under DDM daily deposit mode deposit ₹10 as the savings for 2 consecutive weeks, a fine which is equal to the number of member of an official multiplied by 5 will be deducted from his savings, and the deducted fine will be equally transferred to other members account. And B, fine may increase or decrease in accordance with the number of member. जो डेली सेविंग्स मोड पे सेव कर रहे हैं उनको ये ध्यान में रखना है कि वो अगर 10 रुपये 2 कंसेक्यूटिव वीक्स मतलब 2 हफ्ते के लिए, मतलब पहला हफ्ता या दूसरा हफ्ता, दोनों हफ्ते में अगर वो 10 रुपये सेव कर रहे हो तो उनके ऊपर 3rd वीक में एक फाइन लगाया जाएगा जो कि इक्वल है मेंबर और ऑफिशियल मिला के
उनको मल्टीप्लाई किया जाएगा 5 से, और जो रिजल्ट आएगा वही फाइन उन पे इम्पोज किया जाएगा। क्योंकि ये होता है कि बहुत मेंबर फाइन से बचने के लिए सिर्फ 10 रुपये सेव करते हैं और हफ्ता निकाल देते हैं। तो ये एक बहुत बैड डिसएडवांटेज है इस ग्रुप का। तो इसीलिए ये रूल हमारी तरफ से लगाया गया है, और इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें कि आप कोई भी 2 कंसेक्यूटिव वीक्स में 10 रुपये का सेव ना करें, या तो फिर एक वीक में 10 रुपये कर रहे तो अगले हफ्ते 50 या 100 उससे ज़्यादा करने की कोशिश करें। और फाइन इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकता है जिस तरीके से मेंबर बढ़ेंगे या फिर कम होंगे। द नेक्स्ट रूल सेज a member has to maintain their savings as per their above guidelines for getting priority in investments or loan। हर एक मेंबर को जैसे हमने पहले बताया उस तरीके से सेव करना है, मतलब मेंटेन करना है अपने अकाउंट को। और अगर सही तरीके से आप मेंटेन कर रहे हो आपका अकाउंट, तो फिर आपको इन्वेस्टमेंट्स में भी आपको प्रायोरिटी मिलेगा, और लोन में भी आपका मतलब लोन डिस्पर्स प्रोसेस में भी आपको प्रायोरिटी मिलेगा हमेशा। The next rule is for any query a member has to contact the founder and co-founder through official email at suidesk@gmail.com, or should go to the official website which is www.sui.webnode.com and fill the query form inside members area. And B, it is to be noted that any query submitted online may take up to 2 to 24 hours to get resolved, subject to the availability of the founder and co-founder। कोई भी अगर क्वेरी हो किसी भी मेंबर का और फाउंडर और या फिर को-फाउंडर को कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ ध्यान में रखें कि आप सिर्फ ऑफिशियल ईमेल का इस्तेमाल करें, या फिर हमारे ऑफिशियल वेबसाइट में जाएं और वहाँ पे मेंबर्स एरिया में क्वेरी फॉर्म है, उस क्वेरी फॉर्म को फिलअप करें। और ये भी ध्यान में रखना है कि जो भी क्वेरी फॉर्म आप सबमिट कर रहे हो ऑनलाइन, उसको रिजॉल्व होने में करीबन 2 से 24 घंटे लग सकते हैं, फाउंडर और को फाउंडर की अवेलेबिलिटी के ऊपर। The 13th rule says Starwood Investments Private Limited adds the entire member in the official WhatsApp group of SUI. It is to be noted that no members are allowed to text or send any kind of media related post in that WhatsApp group except for greetings text or congratulating text and the Eid greeting text. Starwood Investments Private Limited हमारे हर एक मेंबर को हमारे जो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ऐड कर देता है, और मेंबर्स को ये ध्यान में रखना है कि आप कोई भी तरीके का टेक्स्ट या फिर कोई भी तरीके का मीडिया रिलेटेड पोस्ट हो उस ग्रुप में ना डालें। सिर्फ आप किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करना है तब कोई भी टेक्स्ट कर सकते हो, या फिर ईद के दिन ईद का ग्रीटिंग्स हो तो कर सकते हो। बाकी इफ एनीवन सेंड एनी काइंड ऑफ टेक्स्ट except the aforementioned occasion in that group, he will be charged with a fine equal to the number of member and official multiplied by 10, and the deducted fine will be equally transferred to other members and officials account। अगर ऊपर मेंशन किए गए तरीके से आप अलग कोई भी टेक्स्ट करते हो तो आपके ऊपर एक फाइन लगाया जाएगा, जो कि होंगे हमारे मेंबर्स, जो टोटल मेंबर्स है ऑफिशियल और मेंबर मिला के मल्टीप्लाइड बाई 10, दैट विल बी अराउंड 70 रुपीज़ अभी के लिए। और ये जो फाइन इम्पोज होगा ये हमारे हर एक मेंबर के अकाउंट में इक्वली ट्रांसफ़र हो जाएगा। और अगर किसी मेंबर ने गलती से in case any member sends anything by mistake, he must have to remove the message within 3 minutes. Not able to do so will lead to a fine as earlier mentioned। और ये एक पॉइंट है जो कि आपको याद रहना ज़रूरी है कि अगर गलती से आपने सेंड कर दिया, कई बार होता है कि गलती से कुछ भी सेंड हो जाता है, अगर गलती से आपने सेंड कर दिया तो आपको 3 मिनट के अंदर वो टेक्स्ट वहाँ से रिमूव करने हैं या फिर डिलीट करने हैं। अगर वो भी नहीं कर पाया तो आपके ऊपर जैसे
बताया गया उस हिसाब से फाइन लग जाएंगे। The 14th rule says, in case of cash saving, a member has to visit the founder or co-founder in order to deposit the savings for that day or month. The founder and co-founder will not visit any member to collect money on request by any member except if there is a medical case arises. ये बहुत ही important point है जो कि हर एक member को ध्यान में रखना है कि जो मेंबर्स कैश सेविंग्स कर रहे हो तो हमारे फाउंडर और को फाउंडर कभी भी आपके रिक्वेस्ट पे आपके पास पैसे कलेक्ट करने के लिए नहीं जाएंगे। अगर आप उस दिन के लिए कोई भी सेविंग्स करना चाहते हो तो यू हैव टू विजिट आवर फाउंडर एंड को फाउंडर इन पर्सन। सिर्फ मेडिकल केस के अलावा मतलब कोई भी मेडिकल केस हो, जैसे किसी का पैर टूटा हुआ है या फिर कोई होम रेस्ट पे है या फिर बेड रेस्ट पे है, तब उस केस में हमारे फाउंडर या फिर को फाउंडर विजिट करेंगे पैसे कलेक्ट करने के लिए। बाकी मेडिकल केसेस के अलावा किसी भी केस में वो विजिट नहीं करेंगे, आपको खुद उनके पास इन पर्सन आना पड़ेगा कैश सेविंग्स के लिए। The 15th rule says, Starwood Investments Private Limited provide checkbook consists of 8 pages to its member to withdraw money. The checkbook is free of cost, but if in case a member lost, torn his checkbook, he has to reissue a new checkbook by visiting the official website www.sui.webnode.com, which will charge ₹50. Starwood Investments Private Limited हर एक मेंबर को एक 8 पेज वाला चेकबुक प्रोवाइड कराता है जो कि पैसे निकालने के लिए होता है। और ये जो चेकबुक है ये एकदम टोटली फ्री है, बट ये ध्यान में रखना है मेंबर को कि आपने अगर इसको गुम कर दिया है कहीं पे या फिर आपने इसको फाड़ दिया या फिर किसी भी तरीके से ये कहीं लॉस्ट हो गया तो उस केस में आपको इसको री इशू करवाना है। और री इशू करवाने के लिए आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है, वहाँ पे क्वेरी फिल करके आपको री इशू करवाना है। और इस केस में आपको 50 रुपये दे के इसको री इशू करवाना है। और ये ध्यान में रखना है आपको कि आपको अगर पैसे उठाने हैं, आपको विड्रॉ करना है तो आपको चेक की बहुत ज़रूरत है, बिना चेक के कोई भी पैसे आपको दिया नहीं जाएगा। The 16th rule is a member has to fill the check in order to withdraw money. For more information, kindly refer to guideline number 3 and 4 under members money withdrawal guideline. किसी भी मेंबर को पैसे निकालने के लिए चेक फिल करना है हमेशा। और ज़्यादा जानने के लिए आपको मेंबर्स मनी विड्रॉल गाइडलाइन के गाइडलाइन नंबर 3 and 4 रेफर कीजिए, तो उसमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे आपको। The 17th rule is a member of Starwood Investments Private Limited cannot take any loan under Starwood Loan Division in any circumstances. Starwood Investments Private Limited का कोई भी मेंबर किसी भी तरीके से हमारे Starwood Loan Division के अंडर कोई भी लोन नहीं ले सकता है। The 18th rule says the joining date of a member will start from the first day of savings. कोई भी नया मेंबर आए तो उनको ये ध्यान में रखना है कि उनका जो पहला ज्वाइनिंग डेट होगा वो हमेशा जो सेविंग्स जिस दिन स्टार्ट हुआ उसी दिन से स्टार्ट होगा। अब सेविंग्स के हिसाब से ये आपको ये ध्यान में रखना है कि जो आप 300 दे के रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो उस दिन का डेट नहीं, जिस दिन से आप सेविंग्स करोगे उसी दिन से स्टार्ट होगा। The 19th rule is Starwood Investments Private Limited provide balance sheet of the entire member after every month, and it is to be noted that a member has to inform the founder or co-founder about any discrepancy found in the balance sheet about their savings by submitting the query form from the official website of SUI, which is www.sui.webnode.com under members area within 48 hours of the release of the balance sheet. Starwood Investments Private Limited हर महीने हर एक मेंबर का बैलेंस शीट प्रोवाइड करवाता है और ये एक मेंबर की ड्यूटी है कि वो उस बैलेंस शीट को डाउनलोड करे
और डाउनलोड करके उसमें अगर उनके सेविंग्स में कोई भी तरह का एम्बिग्यूटी है, डिस्क्रिपेंसी है, उस चीज़ को हमारे ऑफिशियल्स को मतलब उस चीज़ को मतलब हमारे ऑफिशियल्स को कांटेक्ट करें। और कांटेक्ट करने के लिए आपको एक क्वेरी फॉर्म भरना पड़ेगा जो कि मेंबर्स एरिया में है हमारे ऑफिशियल वेबसाइट में। वहाँ जाके आपको क्वेरी फॉर्म फिल करना है और बताना है कि आपको किस तरीके का प्रॉब्लम है। और ये जो भी रिक्वेस्ट है ये आपको विदिन 48 आवर्स ऑफ द रिलीज ऑफ द बैलेंस शीट करना है। मतलब बैलेंस शीट जिस दिन रिलीज होगा उसके 48 आवर्स, दैट इज अराउंड 2 days, 2 दिन के अंदर आपको ये बताना है। If a member fails to inform about the discrepancy of their own savings within 48 hours, no request will be entertained further by founder and co-founder. और अगर कोई मेंबर 2 दिन के अंदर हमें नहीं बताते या फिर 2 दिन पार हो जाता है और उसके बाद आके हमें रिक्वेस्ट करते हैं, हमें बताते हैं कि उनके बैलेंस शीट में कोई भी तरीके का डिस्क्रिपेंसी है, तो उनका कोई भी रिक्वेस्ट तब जाके एंटरटेन नहीं किया जाएगा। और ये बहुत स्ट्रिक्ट रूल है, तो ये हमेशा ध्यान में रखें आप। The 20th rule is, in the last day of each month, Starwood Investments Private Limited update all the savings of the member and enter the data of the savings in the balance sheet. It is to be noted that if a member wants to deposit in the last day of the month, he has to deposit it on or before 1 p.m. Savings done after 1 p.m. will be reflected on the next month's balance sheet. Starwood Investments Private Limited हर महीने के लास्ट दिन को अपने जो पूरे महीने का जो सेविंग्स है वो डेटा एंट्री करती है बैलेंस शीट में। तो कोई भी मेंबर अगर महीने के लास्ट दिन कोई भी तरीके का सेविंग्स करना चाहे तो प्लीज़ काइंडली आप दिन के 1 बजे से पहले ही उसको डिपॉजिट करें, क्योंकि अगर 1 बजे के बाद कोई भी डिपॉजिट करेंगे आप तो वो नेक्स्ट महीने के बैलेंस शीट में वो आपका डिपॉजिट रिफ्लेक्ट होगा। The 21st rule is, a member of Starwood Investments Private Limited maintain the secrecy and confidentiality of this organization. हमारे जो मेंबर है उनको ये ध्यान में रखना है कि वो हमारे जो ग्रुप है, हमारा जो एक ऑर्गेनाइजेशन है स्टारवुड इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, इसका सीक्रेसी हमेशा मेंटेन करें और कॉन्फिडेंशियलिटी हमेशा इसका मेंटेन करें। The 22nd rule is, a member can withdraw his membership from Starwood Investments Private Limited at any time within working hours of SUI. In order to withdraw membership, a member has to go to the official website of SUI, which is www.sui.webnode.com, and download the membership withdrawal forms under members area and submit offline to either founder or co-founder. Starwood Investments Private Limited के members अगर कोई भी रीज़न की वजह से वो अपना मेंबरशिप विड्रॉ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, सिर्फ वर्किंग आवर्स के अंदर ही। वर्किंग आवर्स के अलावा अगर वो कोई भी तरीके का रिक्वेस्ट करे वो वैसे ही एक्सेप्ट नहीं होगा। और अगर आपको मेंबरशिप विड्रॉ करना है तो आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट में जाके मेंबरशिप विड्रॉल फॉर्म डाउनलोड करना है जो कि मेंबर्स एरिया में है, और इसको ऑफलाइन सबमिट करना है हमारे फाउंडर और को फाउंडर के हाथ में। The 23rd rule is, it is to be noted that in the case of withdrawal of membership from the SUI, a charge of 5% will be deducted from the total sum of savings as for maintenance till the date of membership withdrawal. In case of a demise of a member, only 2.5% charge will be deducted. बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान में रखें कि जब भी आप मेंबरशिप विड्रॉ करना चाहते हो तो आपका 5% चार्ज एक जो है वो आपके टोटल जो सेविंग्स होंगे उसमें से डिडक्ट किए जाएंगे, और ये मेंटेनेंस के पर्पस में डिडक्ट किया जाएगा। और अगर इन केस कोई भी मेंबर का डेथ हो जाता है
विद इन द मेंबरशिप पीरियड ऑफ स्टारवुड इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। तो उनके मेंटेनेंस चार्ज सिर्फ 2.5% ही कटेंगे और बाकी उनके एज पर नॉमिनी जो भी होंगे तो उनको हैंड ओवर किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।